So with this, I would like to start on the topic plant hormones, their physiological role and applications. Dear students, many times we heard this word hormone. Screen clearance. Yes, yes, absolutely. बढ़िया है. The word hormone, which is derived from the Greek word hormoin, that meaning to excite, to set in motion. So this hormone word we heard many times, and this is related to us, all the physiological activity going on in our body. Hormones are the chemical messengers. A chemical messengers है which are produced in one part of the organism and transported to the another part where they regulate the specific activity. You can see here in the animated picture how these hormones are transferred from one part to other parts and their activity. These hormones are usually effective in very small quantity, yet they have profound effect on the growth, development, reproduction. ये जो हार्मोन है एक केमिकल मैसेंजर है. तो ये जो केमिकल मैसेंजर है ये छोटे अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट में भी इसका इफेक्ट बताता है, जैसे ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, रिप्रोडक्शन है. हमने अभी तक यही सुना होगा कि दीज हार्मोन्स आर सिंथेसाइज इन ह्यूमन बीइंग और इन केस ऑफ द एनिमल्स. In case of animal, hormones are secreted by specialized gland. We know there are the different glands in our body, that is endocrine glands, which are directly into the bloodstream, and they help to maintain the internal balance. I want to quote one or two example. For example, you may have the insulin. This regulate the blood sugar level. This plays very important role. There are also the different hormones which are synthesized in our body in the human being. For example, serotonin, dopamine. These are the pleasure hormones. Some hormones are the when we do something, some work, complete our work. At that time, this hormone is secreted. These are very important for us. At the same time, these hormones are is these hormones are synthesized in the plants. Is there any kind of the hormone? So yes, unlike the animals, plants do not have a specialized endocrine gland, but instead they produce these hormones in a specific tissues, and these are often transported in the xylem and phloem. जैसे एनिमल में या ह्यूमन बीइंग में हार्मोन्स तैयार होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, वैसे प्लांट्स में ऐसे एंडोक्राइन सिस्टम नहीं है. लेकिन जो स्पेसिफिक टिश्यूज है प्लांट्स में, उस टिश्यू के थ्रू वो हार्मोन सीक्रेट होता है. जिस हार्मोन को जो डिफ्यूजन होता है, मतलब ट्रांसपोर्ट होता है, से हमने सुना होगा कि वस्कुलर टिश्यू सिस्टम प्लांट में रहता है, जिससे वो जाइलम और फ्लोएम से बना है, और उसके थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होते रहता है फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट्स. अभी ये जो आप एनिमेटेड पिक्चर देख रहे हो, इसमें राइट फ्रॉम दी सीड जर्मिनेशन, जैसे ही प्लांट की शुरुआत होती है तब से लेकर तो उसका जो फ्लावर है, फ्रूट है, वहां तक ये जो हार्मोन है दैट प्लेज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इन केस ऑफ प्लांट्स, देर आर these plant hormones are also called as the phytohormones. These are the natural chemical substance. इसको natural chemical substance भी बोला जाता है. Now, these plant hormones that place or regulate the various physiological activities which is going on in the plants, right from the seed germination up to the fruit formation. There are these different hormones here: auxin, gibberellin, cytokinin, ethylene, and ABA. And all these hormones, these are also called as the growth hormone, except this ABA. Now, this in your syllabus, there are the four hormones: auxin, gibberellin, cytokinin, ethylene. All these hormones, these have some specific features, specific characters. These have some speciality. जैसे हर किसी की कोई खासियत होती है, स्पेशलिटी होती है, वैसे इस हर हार्मोन की एक स्पेशलिटी है.
नो डाउट दिस प्लेस द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। जैसे ऑक्सीन है, इसका केमिकल नेम इंडोल एसिटिक एसिड है। दिस हार्मोन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल elongation एंड रूट इनिशिएशन, ये इसकी खासियत है। अनदर हार्मोन दैट इज गिबरेलिन, इसकी खासियत ये है कि इसका नाम जो है वो गिबरेलिक एसिड है, केमिकल नेम। और इसकी खासियत ये है कि दिस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द स्टेम इलोंगेशन, स्टेम को इलोंगेट करता है। और दूसरी खासियत सीड जर्मिनेशन में रोल प्ले करता है, दिस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सीड जर्मिनेशन। अनदर हार्मोन इज द साइटोकाइनिन, ये जो साइटोकाइनिन है जिसको काइनेटिन कहा जाता है, ये साइटोकाइनिन हार्मोन दिस हैज द वेरी इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल रोल दैट इज द सेल डिवीजन, दिस प्लेज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सेल डिवीजन। और ये जो आखिरी वाला है जो इथिलीन कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज द फ्रूट राइपनिंग हार्मोन। ये ऐसा हार्मोन है कि जो फ्रूट राइपनिंग में इन्वॉल्व होता है, और ये ऐसा एक ही हार्मोन है जो गैसियस फॉर्म में है। ये इसका डिस्टिंग कैरेक्टर है, दीज आर द डिस्टिंग कैरेक्टर्स, सो दीज आर द डिफरेंट plant hormones which plays the very important role in the various physiological activities of the plant, right from the seed germination to the fruit development. Now this auxin, one of the plant hormone that is called as the auxin. So this auxin is also called as indole 3 acetic acid. Their chemical name is IAA, and this is first time discovered by F.W. Waite. This is the first plant hormone which is discovered by F. Waite, Fitz Waite, Dutch scientist, and they isolated this from the coleoptile and they call it as the auxin. This auxin, which is synthesized in the various parts of the plant body and like a young leaves, shoot tip, and developing seeds. As these are synthesized in the various parts of the plant body, though this is synthesized at one place, but they act on the other place, and they show their effect in the form of the various physiological role. These physiological role in the form of the cell elongation, apical dominance, delays the onset of leaf abscission, root initiation, differentiation, vascular differentiation, wound healing, and phototropism and gravitropism, root development, and parthenocarpy. Here we elongation. How this auxin plays the important role in the cell elongation. We know that the cell, the various content, and there has the outer membrane is plasma membrane. But in case of plant, there is an additional structure that we call it as the cell wall. This is rigid in nature. So because of this rigidity, this cell cannot elongate. So there must be some flexibility in the cell wall. So this auxin that influence the plasticity of the plant cell wall by activating the proton pump which acidify the cell wall. अभी आप अगर इस डायग्राम में देखोगे, पहली डायग्राम में, फर्स्ट डायग्राम में, जिसमें आपको सेल दिख रहा है और ये जो इधर दिख रहा है वो आफ्टर जो सेल इलोंगेट हो चुका है। लेकिन ये ऐसे ही इलोंगेट नहीं हुआ है, ये कैसे इलोंगेट हुआ है, यहाँ इस सेकंड डायग्राम में आप देखोगे ये ऑक्सीन जो इंडोल एसिटिक एसिड है वो एक्ट हुआ है मेम्ब्रेन पर। उससे वो, क्योंकि ये जो केमिकल मैसेंजर है, इससे वो सिग्नल ट्रांसफर हुआ, जिसके कारण से जो प्रोटॉन पंप है वो प्रोटॉन पंप एक्टिव हुआ, और जो साइटोप्लाज्म से जो प्रोटॉन्स है दैट इज एंटर इनटू द सेल वॉल, वो सेल वॉल में एंटर होने के कारण से सेल वॉल एसिडिफाई हो गई, उसका एसिडिफिकेशन हो गया। उस एसिडिफिकेशन के वजह से वहाँ जो एंजाइम्स है वो एंजाइम्स एक्टिव हुए, और वो एंजाइम्स फिर यहाँ जो सेल वॉल है, अभी वी नो दैट दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द नंबर ऑफ पॉलीमर्स। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल। अब ये सेल वॉल जो सेल्यूलोज है एक माइक्रोफाइब्रिल से क्रॉस लिंक है, जिसको झाइलो ग्लाइकॉन्स कहा जाता है। आपको ये दिखेगा लोड बेयरिंग बॉन्ड्स,
जिसको उसने जकड़ के रखा है, फिट करके रखा है, जिससे वो सेल वॉल जो है रिजिड है, उसमें प्लास्टिसिटी नहीं है, उसमें कितना भी कंटेंट आए सेल में तो वो इनलार्ज नहीं होगा। उसको इलांगेट करने के लिए वहाँ ये लोड बियरिंग बॉन्ड को ब्रेक होना पड़ेगा, और ये जो लोड बियरिंग बॉन्ड है इसको लिमिट किया गया है, ये एक्सपांड नहीं हो सकता। इसके एक्सपेंशन के लिए यहाँ जो एंजाइम एक्टिवेट हुआ है, वो एंजाइम उस सेल्यूलोज और लोड बेयरिंग बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा, उसके कारण से यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा। एज देर इज अ डिस्प्लेसमेंट, there is a elongation of the cell, because there is a turgor pressure which act here, and in response to the turgor pressure वो cell elongate होगा। So is this is the role of the auxin hormone, how it plays the important role in the cell elongation। दूसरा फिजियोलॉजिकल रोल है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द अपाइकल डोमिनेंस। दिस इनिशिएट द अपाइकल डोमिनेंस, auxin initiate the triggers the apical dominance। Before going to see this, we must know what is mean by apical dominance। आप ये पिक्चर में देखोगे, पहला जो पिक्चर है जिसमें आप देख रहे हो उसको लीफ आ रहे हैं और वो ऊपर ऊपर पड़ रहा है, इसके लेटरल ब्रांच है ही नहीं। अभी अपाइकल डोमिनेंस यानी क्या, वी नो द डोमिनेंस, व्हाट इज मीन बाय डोमिनेंस। जब भी किसी का प्रभुत्व होता है उसको हम डोमिनेंस बोलते हैं। और अपाइकल पोर्शन का है, मतलब अपाइकल ग्रोथ हो रही है प्लांट में, जब भी अपाइकल ग्रोथ होती है उसको लेटरल बड्स तैयार नहीं होते, जिसको हम अपाइकल डोमिनेंस कहते हैं। मीन्स अपाइकल बड प्रोड्यूसेस द ऑक्सिन, वो अपाइकल बड में ऑक्सिन ज्यादा क्वांटिटी में तैयार होता है, विच सप्रेस द एक्सिलरी बड, या एक्सिलरी बड को वो सप्रेस करेगा, जिसके कारण से वह लेटरल बड की ग्रोथ ही नहीं होगी, एक्सिलरी बड की, जिसको कहा जाता है अपाइकल डोमिनेंस। ये ट्रिगर करने का काम कौन करता है, दैट इज दी ऑक्सिन। अभी आप दूसरे सेंटर के डायग्राम में देखोगे, उसका जो ऊपर का पार्ट है अपेकल पोर्शन उसको कट किया है। अब उसको कट करने के कारण से क्या होगा है कि देर इज नॉट द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन। एज देर इज नॉट द सिंथेसिस ऑफ द ऑक्सिन, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ जो लेटरल बर्ड है वो तैयार हो गया, और वहां से फिर वो तैयार हुआ। अब ये जो तीसरी डायग्राम है इसमें उसको ब्लॉक किया, फिर से उसको ये दिया है। लेकिन ये जो दूसरी डायग्राम है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पर वो उसको आप देखोगे कि वो अपाइकल डोमिनेंस को कैसे स्टॉप किया। लेकिन जो ये ऑक्सिन है, ये ऑक्सिन इनिशिएट करता है अपाइकल डोमिनेंस, और कैसे इनिशिएट करता है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ द मोर ऑक्सिन। लेकिन इसको काउंटरैक्ट भी होता है, जिसको अनदर हार्मोन जो हम देखेंगे साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ दिस ऑक्सिन हार्मोन, वो उसको डिले करेगा, उसको स्टॉप करेगा, और लेटरल बर्थ को शुरू करना, तैयार करना शुरू करेगा। तीसरा रोल है ऑक्सिन डिलेज द ऑनसेट ऑफ लीफ ऑक्सीडेशन। अभी व्हाट इज मीन बाय लीफ ऑक्सीडेशन, जैसे हम देखते हैं कि पेड़ के पत्ते पीले होने के बाद गिर जाते हैं, पत्ते झड़ना एक चीज, और वो जो पत्ते गिर रहे हैं, जैसे कि शेडिंग ऑफ द लीव्स जिसको हम बोलते हैं। जैसे ये जो ऑब्सेशन टर्मिनोलॉजी है वो फ्रूट्स के लिए भी यूज की जाती है, फ्लावर की, जैसे शेडिंग ऑफ द लीव्स फ्लावर फ्रूट्स फ्रॉम द लिविंग प्लांट इज कॉल्ड एज ऑब्सेशन। व्हेन देयर इज अ शेडिंग ऑफ द लीव्स, दैट इज कॉल्ड एज द लीफ ऑब्सेशन। अब ये जो लीफ ऑब्सेशन है, ये लीफ ऑब्सेशन जो है वो इसको डिले करवाता है। डिले यानी स्टॉप नहीं कर सकता, लीफ गिरेगी, उसका मैचुरेशन हो गई, लेकिन उसको डिले नहीं, डिले करेगा। और ये डिले करने का काम कौन करता है, ऑक्सीन। हियर इन फर्स्ट पेज यू कैन सी द लीफ मेंटेनेंस पेज, जिसमें ऑक्सीन प्रॉपर मात्रा में तैयार हो रहा है, और वो एक यहाँ पर आ रहा है। लेकिन ये जो ऑब्सेशन है ये कहाँ से होता है, जो लीफ बेस है उसके बेस में एक लेयर तैयार होती है, उसको ऑब्सेशन लेयर कहा जाता है। और वहां पर जब भी ऑक्सीजन का प्रमाण कम होगा तो वहाँ जो सेल होंगे वो वहां से डिटैच होंगे, जिसको ऑब्सेशन लेयर बोला जाता है। अगर वहां से उसका सेल वॉल का कनेक्शन टूट गया तो वो लीफ नीचे गिर जाएगा। ये जो फंक्शन है, ये जो ऑब्सेशन है वो वहां से इनिशिएट होता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन में है, सो दिस डिलेस दैट पर्टिकुलर डिटैचमेंट ऑफ द लीव्स। इन सेकंड फेज यू कैन सी हियर देयर इज अ सिंथेसिस ऑफ इथिलीन, एक अदर हार्मोन तैयार होता है प्लांट में। अगर ये प्रोपोर्शन इम्बैलेंस हो गया तो इथिलीन जो है वो सेल वॉल पर एक्ट करेगा, और वहां से वो जो लीफ बेस है उसको डिटैच करेगा। फाइनली क्या होता है कि अगर
ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन सिंथेसिस होना स्टॉप हो गया, इथिलीन ज्यादा बढ़ गया, उसमें फिर जो और एक इफेक्ट होता है जिसको येलोविंग ऑफ लीव्स बोलते हैं, जिसमें क्लोरोफिल वगैरह ब्रेक होता है, ब्रेक डाउन होता है, और यहाँ से वो लीफ सेपरेट हो जाएगा, जिसको क्या कहते हैं, लीफ ऑब्सेशन। लेकिन ये जो ऑक्सीन हार्मोन है वो उसको डिले करता है, डिलेज द ऑनसेट ऑफ लीफ ऑब्सेशन। अनदर रोल दैट इज वस्कुलर डिफरेंशिएशन एंड वोंड हीलिंग। ये जो वस्कुलर डिफरेंशिएशन है, यह जैसे कि कोई भी प्लांट में जो वस्कुलर टिश्यू है, जैसे जाइलम और फ्लोएम हम कहते हैं, वो जो जाइलम और फ्लोएम है, वो दो टिश्यूज तैयार होते हैं जो कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं, जिसको वस्कुलर टिश्यू कहा जाता है। अब इसका डिफरेंशिएशन होता है प्लांट में, और ये डिफरेंशिएशन जो है वो जो ऑक्सीन हार्मोन है उसके रिलेटिव अमाउंट पर वो होता है, टिश्यू तैयार होगा उसका डिफरेंशिएशन होगा, और वो जाइलम और फ्लोएम जो हम बोलते हैं वस्कुलर टिश्यू में। अब इसके अलावा अलॉन्ग विद दैट दिस ऑल्सो प्ले द रोल इन द वाउंड हीलिंग। जैसे कभी भी प्लांट में अगर कोई वाउंड होता है तो उसका कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, जैसे जाइलम कट हो गया, लेकिन उसी समय अगर ऑक्सीन हार्मोन तैयार होता है, और वो ऑक्सीन हार्मोन वहाँ जो टिश्यू तैयार हो रहे हैं उसको डिफ्रेंशिएट करके, ये थर्ड डायग्राम में देखिए आप, यहाँ आपको दिखेगा कि ये जाइलम फॉर्मेशन हुआ है। सो हियर दिस प्लेज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट रोल इन द वाउंड हीलिंग। इसके साथ में इसका और भी रोल है, जैसे कि root initiation. This is the very important role which is played by the auxin hormone in the root initiation, and this also plays the role in the fruit development, also plays the role in the parthenocarpy. What is parthenocarpy? Parthenocarpy is the production of the seedless fruit without fertilization. और ये जो इनिशिएट है वो इनिशिएट करता है ऑक्सीन के ट्रीटमेंट से, उसको ट्रिगर करता है कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सीडलेस फ्रूट। और जो फ्रूट डेवलपमेंट है, जैसे कि ऑक्सीन इज सिंथेसाइज इन द पोलन ग्रेन, एंडोस्पर्म डेवलपिंग सीड्स, और जो पॉलिनेशन है, whenever there is a pollination triggers that set the fruit setting, और उसी समय उसमें ऑक्सीजन तैयार होता है, उसका फ्रूट जो डेवलपमेंट है वो उसमें लगता है। सो दीज आर दी वेरियस रोल, फिजियोलॉजिकल रोल विच इज प्लेड बाय दिस ऑक्सीजन हार्मोन। हमने अभी जो हार्मोन के रोल देखे, जिसमें सबसे पहला सील इलोंगेशन, उसके बाद में अपाइकल डोमिनेंस, उसके बाद में ऑनसेट ऑफ लीफ ऑब्सेशन, उसके बाद रूट इनिशिएशन और पार्थेनोकार्पी। अनदर रोल plays the very important role in the phototropism and gravitropism, that is geotropism. Many times we heard that plant shows their movement in response to the light. जैसे भी हम प्लांट लगाते हैं तो वो लाइट के रिस्पांस में ग्रो होता है। तो ऐसा क्यों होता है? और दूसरा पार्ट, दूसरी चीज है कि जो रूट्स है वो नीचे ही क्यों ग्रो होते हैं, वो डाउनवर्ड, दिस ग्रोज इन रिस्पांस टू द ग्रेविटी, दैट इज कॉल्ड एज द ग्रेविट्रोपिज्म। ऐसे दो, एक लाइट के रिस्पांस में, एक मोमेंट है ग्रेविटी के रिस्पांस में। as no doubt this is this shows the response, this moment in response to the light. But how it shows in response to the light? Because here you can see, whenever there is the sunlight, in the opposite side of this sunlight there is a more synthesis of the oxygen hormone. As there is a more oxygen is synthesized, there is a more elongation of the cell, and this is bent toward the light. So that is called as the phototropism. शेडेड साइड में ज्यादा तैयार होगा ऑक्सीजन, उसके कारण से वो बेंड होगा। उसी दूसरी मूवमेंट जो है जिसको हम डायविट्रोपिज्म बोलते हैं, आप इधर देखोगे ये डायग्राम में, सेकंड डायग्राम में, जहाँ क्वाड्रिक स्टील है और ये रूट कैप है, जिस रूट कैप में वो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन प्रॉपर मात्रा में तैयार हो रहा है, और यहाँ पे एक रूट कैप में आपको ये गोल गोल दिख रहा है, जो गोल गोल है जिसको स्टेटोलिथ, जो अमाइलोप्लास्ट है जिसको स्टार्च स्टोर किया जाता है, ये रिस्पॉन्स करता है ग्रेविटी को। इसके कारण से रूट की जो ग्रोथ है वो नीचे नीचे होती है, इसलिए हम कहते हैं कि रूट दैट ग्रोज इन रिस्पॉन्स टू द ग्रेविटी। सो इन दिस केस दैट ऑक्सीजन इज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। So these are the various role of the auxin hormone which is played here, along with the physiological role of the auxin। मतलब ये जो फिजियोलॉजिकल रोल है इसका एप्लीकेशन है, मतलब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है,
इसका पहला प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ऑक्सीन का, फर्स्ट एप्लीकेशन दैट इज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इंडोल ब्यूटेरिक एसिड है, नाफ्थल एसिटिक, ये फॉर्म्स है इंडोल एसिटिक एसिड के, विच स्टिमुलेट द एडवेंशियस रूट फॉर्मेशन, जो रूट फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। जैसे यूज इन रूटिंग, यूज एज अ रूटिंग हार्मोन, जिसको रूटिंग हार्मोन बोलते हैं, इन अ पाउडर फॉर्म फॉर द स्टेम एंड लीफ कटिंग। जैसे हमको अगर कोई कटिंग्स लगाना है और उसको रूट जल्दी आने चाहिए, तो हम उस रूट, मतलब उस स्टेम कटिंग को उस जो भी पाउडर है या जो भी लिक्विड बनाएंगे उसमें अगर डुबाएंगे और उसको अगर लगाएंगे प्रॉपर मात्रा में, तो उसको रूटिंग आएगा। सो दिस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इसीलिए उसको रूटिंग हार्मोन भी क्या बोला जाता है। दूसरा रोल है कि इन प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर में प्रमोट द कैलस फॉर्मेशन। जैसे ऑर्गन डिफरेंशिएशन इन द टिश्यू कल्चर टेक्निक, जैसे हम, मैंने अभी बोला है कि ये जो रूट इनिशिएशन में टेक पार्ट करता है ना, तो जो रूट इनिशिएशन में अगर टेक पार्ट करता है, तो टिश्यू कल्चर सिस्टम में जो भी कैलस फॉर्मेशन होता है उसका फिर डिफरेंशिएशन होता है, मॉर्फोजेनेसिस होता है, उसमें उसको उस इनिशिएशन के लिए, रूट इनिशिएशन के लिए भी यूज किया जाता है। तीसरा है फ्रूट डेवलपमेंट। जैसे अपने फिजियोलॉजिकल रोल में देखा है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है कि ऑक्सीन आर यूज टू प्रमोट द सीडलेस फ्रूट फॉर्मेशन, जैसे पार्थेनोकार्पी है उसके, अनदर फॉर्म ऑफ द ऑक्सीन दैट इज यूज टू इंड्यूस द फ्लावरिंग इन द पाइनएप्पल, थिनिंग में भी यूज किया जाता है। सो ऐसे इसके जो जो हार्मोन है ऑक्सीन, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, और फिजियोलॉजिकल रोल भी प्लांट के ग्रोथ में, डेवलपमेंट में उसको फिजियोलॉजिकल रोल प्ले करता है। अभी दूसरा जो हार्मोन है जिसको गिबरेलिन कहते हैं, गिब्रेलिन, जिब्रेलिन, अभी इसके पीछे एक स्टोरी है। मतलब ये जो गिब्रेलिन है, दिस इज डिस्कवर्ड इन 1930, एंड दिस गिब्रेलिन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन जापान, वो जापान में पाया गया, फ्रॉम दी वन ऑफ दी फंगस। इसका जो नाम है एक फंगस के नाम से दिया गया है, जिसका नाम है गिबरेला फ्यूजिकोरा, ये फंगस का नाम है। सबसे पहले वो उसी में ही पाया गया, उसमें ही डिस्कवर किया गया एक जापानी साइंटिस्ट ने। अब वो उसको कैसे दिखा कि जिसमें एक प्लांट है, जैसे राइस प्लांट बोलते, वो इतना लंबा ग्रो हुआ, इतना लंबा ग्रो हुआ जैसे हम एक्सपेक्ट नहीं करते। जैसे हम राइस प्लांट को देखते हैं तो वो कुछ हाइट तक ग्रो होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा लंबा ग्रो हुआ। फिर उस साइंटिस्ट को लगा कि उसमें क्या हुआ, उसने उसमें देखा कि भाई इसमें एक फंगल इन्फेक्शन हुआ है, और वो फंगल इन्फेक्शन में एक केमिकल कंपाउंड तैयार हुआ है जिसको कहा गया गिबरेलिक एसिड, और वो गिबरेलिक एसिड के वजह से उसमें उसका इलांगेशन हो गया, जिसको नाम दिया गया पकानी डिजीज बोला गया उसको। तो ऐसा ये गिबरलिन का एक स्टोरी है, हिस्ट्री है, और जिसको कहा गया है गिबरेलिक एसिड। अभी ये जो गिबरेलिक एसिड है, इसकी भी, दिस आल्सो प्लेज द फिजियोलॉजिकल रोल, नो डाउट, दिस हैज आल्सो द एप्लीकेशंस। अब इसके फिजियोलॉजिकल रोल क्या है, तो ये जो गिबरेलिन है, जिसका केमिकल नेम गिबरेलिक एसिड है, और ये जो गिबरेलिक एसिड है, ये गिबरेलिक एसिड, इसका, उसको डिफाइन किया केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर, वो तैयार होता है डेवलपिंग सीड में, फ्रूट में, यंग लीव्स, डेवलपिंग अपाइकल बर्ड्स, इस रीजन्स में वो तैयार होता है, अपाइकल रीजन ऑफ द रूट में भी तैयार होता है। इसके जो फिजियोलॉजिकल रोल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल है स्टेम इलांगेशन, जिसको एक फिनोमिना का नाम दिया है बोल्टिंग एंड फ्लावरिंग, वो मैं अभी आप बताऊंगा आपको। उसके बाद है प्रमोट दी सीड जर्मिनेशन, उसके बाद है ब्रेकिंग द सीड डॉर्मेंसी, वो सीड डॉर्मेंसी ब्रेक करता है। रेगुलेट द ट्रांजिशन फ्रॉम जुवेनाइल टू अडल्ट फेज, फ्लावर इंडक्शन करता है और फ्रूट सेटिंग करता है। सो इफ वी सी द फर्स्ट रोल, दैट इज द स्टेम इलोंगेशन। अभी ये जो गिबरेलिन है, दैट स्टिमुलेट द स्टेम इलोंगेशन, स्टेम को इलोंगेट करता है। स्टेम को इलोंगेट करता है मतलब क्या करता है, वी नो द स्टेम, दैट स्टेम हैज द नोड एंड इंटरनोडल पोर्शन। वहाँ जो इंटरनोडल पोर्शन है और जो नोडल पोर्शन है, अगर इंटरनोड पोर्शन बड़ा होगा तो वो स्टेम इलोंगेट होगा। अगर इंटरनोड ही कॉम्पैक्ट है, दिख ही नहीं रहा है इंटरनोड, तो वो स्टेम इलोंगेट नहीं होगा। तो गिबरलिन स्टिमुलेट दिस स्टेम इलोंगेशन, स्पेशली इन द डॉफ एंड रोजेट प्लांट। अभी
आपको पता है कि कुछ प्लांट जो है वो टॉल रहते हैं, बहुत बड़े होते हैं, कुछ प्लांट जो है वो थोड़े से छोटे होते हैं, जिसको हम डॉर्फ बोलते हैं। लेकिन डॉर्फ से भी एक्सट्रीम कंडीशन है कुछ प्लांट की, जिसमें हम देख ही नहीं सकते कि यार नोड है इंटर नोड है। जैसे आप ये पत्ता गोभी का देखोगे, इसमें आपको पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे नोड का है, इंटर नोड का है, स्टेम का है, ये सब आपको पत्ते दिख रहे हैं, लीफ दिख रहा है। सो दिस रोजेट प्लांट दैट, दिस इज द एक्सट्रीम डॉर्फिज्म, मतलब ज्यादा से ज्यादा डॉर्फिज्म जो है, जिसको रोजेट प्लांट कहते हैं। दिस फेल्स टू इलांगेट, वो इलांगेट ही नहीं होते उसका स्टेम। दीज आर क्लोजली स्पेसली, उसके कारण से वहाँ फ्लावरिंग इम्पॉसिबल है। सो whenever there is a application of the gibberellin that elongate that particular internodal portion, there is a formation of space, and because of that there is a formation of the flowering. एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि हम पालक बोलते हैं, पालक स्पिनच, स्पाइनेसिया, उसके बाद में कैबेज है। तो इन इस प्लांट में वो फ्लावर नहीं होता क्योंकि वो रोजेट फॉर्म में है। तो उसमें फ्लावरिंग इनिशिएट करने के लिए उसमें वो अगर ट्रीटमेंट दिया जाता है गिबरेलिन का, तो वो उसको इलांगेट करेगा और उसको फ्लावरिंग आएगा। इससे ऐसा जो फिनोमेना है, जस्ट बिफोर द फ्लावरिंग व्हेन दिस प्लांट स्टेम अंडरगोज द इलांगेशन, दिस इज कॉल्ड एज द बोल्टिंग। इसको बोल्टिंग कहा जाता है। जैसे कि फ्लावरिंग के पहले स्टेम को इलांगेट किया और उसके बाद उसमें फ्लावरिंग हुआ, उस फिनोमेना को बोलते हैं बोल्टिंग। और जो स्टेम इलांगेट हो रहा है किसके कारण से हो रहा है, वो जो गिबरेलिन है उसके कारण से। अभी आप इस डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पर ये गिबरेलिन यूज करके या ब्रासिका को वो स्टिमुलेट किया गया इसके इलांगेशन के लिए, जिसमें वो फ्लावरिंग आया। और उसी साइड में आप ये देखोगे, ये साइंटिस्ट है जिसने कैबेज को ट्रीटमेंट दिया, कैबेज को। और आप देखोगे उसको सीढ़ी पे चढ़ के उसको देखना पड़ रहा है। वो क्यों पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ दी that gibberellin hormone which act there. So this is one of the role which is played by this hormone. Another role है promote the seed germination. अभी ये सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। हाउ इट प्रमोट द सीड जर्मिनेशन? हियर आप देखोगे ये जो सीड है, जिसको एम्ब्रियो भी है, मतलब सॉरी एंडोस्पर्म है, और जिसमें ये अभी सीड जर्मिनेशन में जा रहा है, तो जिसमें एम्ब्रियो भी है। अभी ये यहाँ इस कोलियोप्टाइल रीजन में उसका सिंथेसिस होता है। काय का सिंथेसिस होता है? गिबरेलिक एसिड का। जो एंडोस्पर्म है जिसमें स्टार्ची फूड मटेरियल स्टोर्ड है, लेकिन वो यूटिलाइज नहीं किया सकता, कर सकते, क्योंकि उसके लिए एंजाइम नहीं है। और वो एंजाइम जो है, वो जो गिबरेलिक एसिड है, वो एंटर होगा इस एंडोस्पर्मिक रीजन में। उसका जो कवरिंग है जिसको एल्यूरॉन लेयर बोलते हैं, और वो एलिरॉन लेयर से हाइड्रोलाइटिंग एंजाइम सीक्रेट होंगे, तैयार होंगे। और जो एंडोस्पर्म में जो सॉल्यूट्स है जिसको स्टार्च बोलते हैं, वो कन्वर्ट होगा। जैसे अमाइलेज एंजाइम है, अमाइलेज एंजाइम कन्वर्ट द स्टार्च इनटू द शुगर। वो शुगर जो है, फिर वो शुगर इंटर यूज की जाएगी वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए। सो इसके कारण से जो सीड जर्मिनेशन है उसका प्रोसेस फास्ट होगा। इसके कारण से हम बोलते हैं कि दिस gibberellic acid that promote this seed germination. You don't need to draw this such kind of the diagram. मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए बताया है कि how these gibberellic acid promote this seed germination. Similarly, ये सीड डॉर्मेंसी भी ब्रेक करता है। सीड डॉर्मेंसी यानी कि वो जो सीड है वो रेस्टिंग पीरियड में जाता है, वो जर्मिनेट नहीं होता है। उसकी डॉर्मेंसी ब्रेक करने के लिए भी वो गिबरलिक एसिड काम करता है, क्योंकि वो जो उसमें स्टोर्ड फूड मटेरियल है उसको ब्रेक करता है और प्रोवाइड द एनर्जी फॉर द सीड जर्मिनेशन। तो दिस ऑल्सो ब्रेक द सीड डॉर्मेंसी। उसके अलावा अनदर रोल विच इज प्लेड बाय द हार्मोन, दैट इज दैट रेगुलेट द ट्रांजिशन फ्रॉम जुवेनाइल टू एडल्ट स्टेज। अभी इसमें दो टर्मिनोलॉजी यूज की गई है। जैसे ट्रांजिशन मतलब एक फेज से दूसरे फेज में, पहला तो रेगुलेट है, रेगुलेट किया करेगा, ट्रांजिशन करेगा एक फेज से दूसरे फेज में, फ्रॉम जुवेनाइल टू एडल्ट फेज। तो ये जुवेनाइल फेज क्या है? जैसे मेनी वुडी पेरिनियल प्लांट दैट डू नॉट फ्लावर अंटिल द मैच्योरिटी, मैच्योरिटी आने तक वो फ्लावरिंग उसमें होता नहीं है। ये जो मैच्योरिटी तक की जो स्टेज है, जिसको जुवेनाइल स्टेज कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जुवेनाइल स्टेज। अब ये जुवेनाइल स्टेज कब रहती है? मैच्योरिटी तक, म्हणजे फ्लावर फॉर्मेशन जो भी फेज होगी, जिसको जुवेनाइल फेज कहा जाता है। और ऐसे जो
कोनिफरस प्लांट है, जिस कोनिफरस प्लांट में उसका जो जुवेनाइल फेज का पीरियड है वो ज्यादा होता है, उसको कम करने के लिए इसमें वो जो अगर गिबरेलिन उसको वहाँ एक्ट होता है तो वो जुवेनाइल फेज का टाइम स्पैन कम करेगा और उसको एडल्ट फेज में कन्वर्ट करेगा। ये जो कोनिफरस प्लांट है जिसमें ऐसे कोन लाइक स्ट्रक्चर तैयार होते हैं, ये आप देखोगे यहाँ पर, और वो फिर उसको अडल्ट फेज में ट्रांसफर करेगा। सो दिस इज द वन ऑफ द रोल ऑफ दिस गिबरेलिक एसिड इन द ट्रांजिशन फ्रॉम जुवेनाइल टू अडल्ट फेज। इसके बाद में इसके अलावा और भी रोल है, जैसे फ्लावरिंग इंडक्शन है। कुछ प्लांट में, जिस प्लांट में जो ऑक्सीजन हार्मोन है वो पॉसिबल नहीं है, तो ये जो गिबरेलिक एसिड है वो फ्लावरिंग इंडक्शन में काम करेगा। कुछ जो प्लांट्स है जिसमें फ्रूट सेटिंग दूसरे हार्मोन से पॉसिबल नहीं है, तो जिसमें ये गिबरेलिक एसिड रोल प्ले करेगा। सो दीज आर दी वेरियस रोल ऑफ द फिजियोलॉजिकल रोल विच इज प्लेड बाय द गिबरेलिक एसिड। नाउ अलॉन्ग विद द फिजियोलॉजिकल रोल, ये फिजियोलॉजिकल रोल किसके लिए हो गए, वो प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए हो गए, लेकिन उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, उसको एग्रीकल्चर या वेरियस फील्ड में कैसे यूज किया जाता है। सो वो है सबसे पहला फ्रूट प्रोडक्शन। फ्रूट प्रोडक्शन में कैसे, जैसे गिबरेलिन इंक्रीजेज द स्टॉक लेंथ, वो स्टॉक लेंथ बढ़ाता है इन द सीडलेस ग्रेप। आप ये यहाँ पर एक फोटो देखो, एक जो एक हाथ में उसके अंगूर का बंच है, दूसरे हाथ में भी ग्रेप्स का बंच है। एक हाथ में छोटा है, दूसरे हाथ में बड़ा है। पहले हाथ में जो है जिसको ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, दूसरे हाथ में उसको गिबरेलिन का ट्रीटमेंट दिया गया, जिसके कारण से उसका स्टॉक लेंथ बढ़ा। स्टॉक लेंथ बढ़ने के कारण से वहाँ स्पेस मिला, स्पेस मिलने के कारण से वो ग्रेप्स का नंबर बढ़ गया। उसके साथ में वो जो ग्रेप की साइज है वो भी बढ़ाता है। वो है फ्रूट प्रोडक्शन, मतलब ये फ्रूट प्रोडक्शन में उसका एप्लीकेशन हो गया। उसके साथ में है माल्टिंग ऑफ बार्ली। जैसे बार्ली जो है वो माल्टिंग, जैसे ब्यूरिंग इंडस्ट्री जो है जिसमें अल्कोहल इथेनॉल तैयार किया जाता, जिसमें ये जो बार्ली सीड है इसमें स्टार्ची फूड मटेरियल रहता है, जिसको जल्दी से अगर कन्वर्ट करना है तो उसको गिबरेलिन का अगर ट्रीटमेंट दिया जाता है तो वो स्टार्ची फूड मटेरियल कन्वर्ट होगा शुगर में, और वो शुगर यूज की जाएगी कन्वर्ट द ग्लूकोज इनटू द इथेनॉल बाय यूजिंग द ईस्ट। तो इसीलिए उसको माल्टिंग ऑफ बार्ली, जैसे वो ब्रेविंग इंडस्ट्री जो हम बोलते हैं जिसको फर्मेंटेशन के लिए उसको यूज किया जाता है। और उसके साथ में तो उसका अनदर एप्लीकेशन है इंक्रीजिंग द शुगर केन यील्ड। आप साइड में पिक्चर में देख सकते हो वो शुगर केन है। शुगर केन में इंटरनोड जो पोर्शन है वो बड़ा होता है। आप वो जो हम खाते हैं वो इंटरनोडल पोर्शन है, उसके साथ में रहता है नोडल पोर्शन। सो अगर इसका स्टिमुलेशन हुआ गिबरेलिक एसिड का उसके साथ, तो इसका इंटरनोडल पोर्शन बढ़ेगा। इंटरनोडल पोर्शन बढ़ेगा मतलब शुगर केन की जो साइज है वो बढ़ेगी। अगर उसकी साइज बढ़ेगी, जो रॉ केन यील्ड है वो 20 टन से, मतलब वो पर एकड़ उसको बढ़ सकता है, ऐसा एक कैलकुलेशन दिया है पर एकड़। सो 2 टन्स पर एकड़ ऐसा दिया है। सो ये जो इसका यील्ड है वो बढ़ेगा। उसके साथ में ये जो गिबरेलिक एसिड है दिस इज ऑल्सो यूज इन द प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग में कैसे, जैसे हम बोलते हैं ना बोल्टिंग इन द बाइनियल प्लांट्स, जैसे कि उसको फ्लावरिंग इनिशिएट करना है जल्दी से, तो उसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और ऑल्सो हेल्प इन ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी इन पोटैटो ट्यूबर्स। पोटैटो ट्यूबर्स में भी इसको यूज किया जाता है उसकी डॉर्मेंसी ब्रेक करने के लिए। सो दीज आर दी वेरियस एप्लीकेशन ऑफ दी गिबरेलिन। सो हमने अभी तक देखा कि इसके गिबरेलिन के कौन से फिजियोलॉजिकल रोल है और उसके एप्लीकेशंस क्या है। उसके बाद तीसरा जो प्लांट हार्मोन है वो है साइटोकाइनिन। हर हार्मोन की खासियत है और वो उस तरीके से वो फंक्शन परफॉर्म करता है और उसका एप्लीकेशन भी है। जैसे ये जो साइटोकाइनिन है, नाउ दिस साइटोकाइनिन वाज डिस्कवर्ड बाय द यप्स कुक इन 1950। इसको 1950 में डिस्कवर किया गया, और जो फेमस है सेल डिवीजन के लिए। अभी ये जो साइटोकाइनिन है, दिस प्लेस द रोल
in the various physiological process. One of the role that is cell division and morphogenesis that delays the senescence, modify the apical dominance. हमने ऑक्सीजन में देखा कि वो एपिकल डोमिनेंस को इनिशिएट करता है, यहाँ पर वो उसको स्टॉप करेगा, मॉडिफाई करेगा, और लेटरल बर्ड फॉर्मेशन को, लेटरल बर्ड तैयार करेगा, और also promote the chloroplast development. So here we will see here. Now here this cytokinin that plays the role in the cell division and morphogenesis. How it plays the role in the cell division? हमको पता है what is mean by cell division. सेल डिवीजन यानी एक सेल से दो सेल तैयार हो रहा है, इसको हम बोलते हैं सेल डिवीजन. लेकिन ये जो सेल डिवीजन होता है, जिसमें अलग अलग फेज से सेल को जाना पड़ता है. सबसे पहला फेज रहता है इंटरफेज, उसके बाद में यम फेज रहता है जिसमें एक्चुअल में उसका डिवीजन होता है. सो ये जो फेज है, ये फेज में उसको ट्रांजिट करने के लिए वो साइटोकाइनिन हार्मोन रोल प्ले करता है. जैसे साइटोकाइनिन प्रोमोट द ऑनसेट ऑफ माइटोसिस, मतलब माइटोसिस को प्रमोट करता है. कैसे करता है? जैसे कि हमने देखा कि इंटरफेज सेल जो है, सेल साइकिल जिसमें इंटरफेज होती है, जिसमें G1 यस और G2 फेज होता है, उसके बाद में डायरेक्ट माइटोसिस होता है. तो G1 G2 यस और G2 जो, या G2 से उसको जल्दी से जल्दी ट्रांजिट करने के लिए जो एंजाइम्स है उसको एक्टिवेट करता है, और उसके कारण से वह सेल डिवीजन फास्ट होता है. सो हियर दिस साइटोकाइनिन हार्मोन दैट प्रमोट द सेल डिवीजन. उसके साथ में जो मॉर्फोजेनेसिस कहा जाता है, जैसे कि हम बोलते हैं कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन रेशियो, जैसे रूट इनिशिएशन और शूट इनिशिएशन जो हम बोलते हैं, जैसे इन कल्चर टिश्यू. सो साइटो ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशियो दैट रेगुलेट द मॉर्फोजेनेसिस इन कल्चर टिश्यू. जिस कल्चर टिश्यू में जैसे हाई ऑक्सिन साइटोकाइनिन दैट स्टिमुलेट द रूट, ज्यादा ऑक्सिन होगा, साइटोकाइनिन कम होगा तो रूट इनिशिएट होगा. और वही अगर लो ऑक्सीजन होगा, साइटोकाइनिन ज्यादा होगा, तो वहां पर जो होगा वो शूट फॉर्मेशन होगा. सो दिस इज द अनदर रोल विच इज प्लेड बाय दिस साइटोकाइनिन हार्मोन. उसके बाद में है दैट डिलेज द लीफ सेनेसेंस. अभी ये जो है, यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, डिलेज. डिले यानी उसको प्रोलॉन्ग करेगा. लीफ, वी नो द लीफ. अब यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी है सेनेसंस. हमने पहले देखा है ऑब्सेशन. ऑब्सेशन यानी सिर्फ लीफ फॉल, लीफ पत्ते गिरना, एक जगह वहां पर जो लेयर है वहां से डिटैचमेंट होना. लेकिन यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी है सेनेसंस. अब ये सेनेसंस क्या है? जैसे सबसे पहले हम देखेंगे कि लीव्स डिटैच फ्रॉम दी प्लांट स्लोली. जैसे डायरेक्टली कोई भी पत्ता आज तैयार हुआ और कल गिर गया, ऐसा नहीं होगा. तो इसमें क्या होता है कि लॉस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ब्रेक डाउन होगा, उसका जो न्यूक्लिक एसिड है वो ब्रेक डाउन होगा, जैसे आरएनए डीएनए. लिपिड ब्रेक डाउन होगा, प्रोटीन ब्रेक डाउन होगा. अभी उसके पास कुछ भी नहीं है. उसके पास कुछ भी नहीं है मतलब उसका कलर चेंज हो जाएगा, येलोइंग होगा, और उसके कारण से वो पत्ता जो है वो गिर जाएगा. लेकिन वो आज नहीं एक ही दिन में नहीं, या जल्दी से नहीं गिरेगा. ये जो प्रोसेस है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम एजिंग प्रोसेस. एक प्रोग्राम फिक्स है प्लांट में एजिंग का, वो वहां से शुरू हो गया और कुछ टाइम के बाद वो खत्म हो जाएगा, दैट लीडिंग द डेथ, दैट इज कॉल्ड एज द सेनेसेंस. जैसे हमारे बॉडी में भी प्रोग्राम एजिंग फिनोमिना है, प्रोग्राम सेल डेथ है. जैसे हम जब से मतलब हम जब से हमारा बर्थ हुआ तब से तो एजिंग, मतलब जब तक उसका एज होगा तो आप देखोगे तो उसमें एजिंग बढ़ जाता है. जैसे स्किन का सिकुड़ना, उसके रिंकलिंग आना, तो ये भी एक एजिंग प्रोसेस है. वो पहले से शुरू हो गई और वहाँ वहाँ तक जा रही है. ऐसे ही प्लांट, लेकिन प्लांट में उसके वैसा एक पूरे ऑर्गेनिज्म, एंटायर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है. एक लीफ में भी हो सकता है, कुछ कुछ पार्ट में भी होता है. तो ये जो है इसको प्रोग्राम एजिंग फिनोमेना कहते हैं, जिस दैट लीड टू द डेथ, जिसको क्या कहते हैं, सेनेसंस, लीफ सेनेसंस. सो ये जो लीफ सेनेसंस है, जैसे ही साइटोकाइनिन का सिंथेसिस वहाँ पे होगा, तो वो जो प्रोसेस है वो डिले करेगा, स्टॉप नहीं करेगा. जैसे कि 6 महीने के बाद पत्ता गिरना है तो वो 8 महीने के बाद गिरेगा, 10 महीने के बाद गिरेगा, जिसको हम कहते हैं डिलेज दी सेनेसंस. सेनेसंस में क्या होता है कि ये ब्रेकडाउन होता है वेरियस मेटाबोलाइट्स का, जैसे क्लोरोफिल है, आरएनए है, लिपिड है, प्रोटीन है, और जिसको हमने क्या कहा है,
This is the program aging process that lead to the death, that is called as the senescence. और ये senescence को डिले करेगा कौन? साइटोकाइनिन। और यंग ल्यूज में ज्यादातर साइटोकाइनिन तैयार होने के कारण से उसका जो एजिंग एज है वो ज्यादा होता है। इसके बाद में है साइटोकाइनिन मॉडिफाई दी अपाइकल डोमिनेंस। जैसे हमने ऑक्सिन में देखा था, ऑक्सिन दैट इनिशिएट दी अपाइकल, वो अपाइकल डोमिनेंस को बढ़ावा देता है, प्रमोट करता है। अपाइकल पार्ट ही ग्रो होगा, लेटरल बड ग्रो नहीं होगा। वो कौन करता है? ऑक्सिन। उसका काउंटर एक्शन कौन करता है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है? अपाइकल डोमिनेंस कंट्रोल करता है by forming the plant branching. Auxin primarily regulate the apical dominance. साइटोकाइनिन प्रमोट दी लैटरल बर्ड ग्रोथ, वो लैटरल बर्ड ग्रोथ को बढ़ावा देता है, तैयार करता है बाय स्टिमुलेटिंग द सेल डिवीजन। एंड दिस इन साइटोकाइनिन ओवर प्रोड्यूसिंग प्लांट देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द लैटरल बर्ड्स। ज्यादा लैटरल बर्ड तैयार होने के कारण से दिस ग्रो विगरसली एंड दैट मेकिंग द प्लांट बुशी। वो मल्टीपल शूट्स तैयार करता है वो मेन स्टेम पर। इसीलिए ये जो साइटोकाइनिन है दैट प्लेज द रोल इन द that modify the apical dominance and promote the lateral bud growth. So आपको ये जब आप हार्मोन देखोगे तो आपको कंपेरेटिव भी ख्याल में रखना है कि वहां भी अपिकल डोमिनेंस टर्मिनोलॉजी आई, यहाँ पर भी अपिकल डोमिनेंस टर्मिनोलॉजी आई, लेकिन यहाँ पर अलग तरीके से आई, वहां पर अलग तरीके से आई। सो इसको आपको ख्याल में रखना है। उसके बाद है प्रोमोट दी क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट। अभी हमको पता है कि क्लोरोप्लास्ट डेवलप होता है, उसके कारण से लीफ हरे दिखते हैं, उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट तैयार होता है। लेकिन कुछ प्लांट जो है वो डार्क रीजन में ग्रो होते हैं जहाँ लाइट नहीं होता है, जिसमें वो क्लोरोप्लास्ट मैच्योर नहीं होता है, वो वहाँ डेवलप नहीं होता, क्लोरोफिल पिगमेंट तैयार नहीं होता, जिसको इटियोप्लास्ट कहा जाता है। और वो इथियोप्लास्ट जो है अगर उसमें साइटोकाइनिन सिंथेसिस हुआ, उसका डिवेलपमेंट हुआ, तो वो जो साइटोकाइनिन है वो कन्वर्ट करेगा उस इथियोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस। इसीलिए उसको हम कहते हैं कि दैट साइटोकाइनिन प्लेज द रोल दैट प्रोमोट द क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट। रोल विच इज प्लेड बाय द साइटोकाइनिन, मतलब हमने उसमें देखा सेल डिवीजन, मॉर्फोजेनेसिस, उसके साथ में डिलेज द लीफ सेनेसेंस, उसके बाद मॉडिफाई द अपिकल डोमिनेंस, और उसके बाद प्रमोट द क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट। अभी उसका मंगेशचा नेटवर्क गेला वाटते. एक 2-3 मिनिटात होईल रिस्टोर. मंगेश पुन्हा एकदा शेअर कर स्क्रीन. पुन्हा एकदा स्क्रीन शेअर कर. मला शेअर नाही करता येते। केलं केलं केलं. तो दिस प्रॅक्टिकल सर विजिबल आहे स्क्रीन? हो. ओके. ओके, ओके आवाज आहे येत सर, आहे? ओके. हो सर, हॅलो, आवाज येत आहे सर, आवाज येत आहे. व्यवस्थित दिसतंय. क्लिअर आहे आवाज? आवाज येतोय, येतोय हो आवाज. हो. ओके, नाउ हियर the application of the cytokinin, one of the application of the cytokinin in the plant tissue culture.
प्लांट टिश्यू कल्चर में साइटोकाइनिन लाइक बीएपी हेल्प इन रैपिड शूट ग्रोथ, इसमें उसको यूज किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं कि साइटोकाइनेसिस प्लस सेल डिवीजन में यूज किया जाता है, सेल डिवीजन प्रमोट करता है। सो प्लांट टिश्यू कल्चर दिस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उसके बाद है डिले दी लीफ एजिंग, मतलब साइटोकाइनिन जो है अगर उसका स्प्रे करते हैं तो उसका जो एजिंग है लीफ का, वो लीफ का एजिंग कम किया जाएगा, मतलब उसको डिले किया जाएगा लीफ एजिंग को। उसके साथ में ही मतलब वो जो लीफ है वो ग्रीन रहेगा फॉर द लॉन्गर टाइम। उसके बाद है एनहांसिंग द फूड ग्रोथ। उसके बाद है प्रोलॉन्गिंग द फ्रेशनेस ऑफ द वेजिटेबल। जैसे ये जो वेजिटेबल है उसका फ्रेशनेस प्रोलॉन्ग करने के लिए भी ये जो साइटोकाइनिन है उसको यूज किया जाता है। सो दीज आर दी वेरियस रोल एंड एप्लीकेशन विच इज प्लेड बाय दिस cytokinin hormone. नाउ अनदर हार्मोन दैट इज इथिलीन। अब ये इथिलीन जो है ये तीनों से सबसे अलग है। क्यों अलग है? बिकॉज दिस इज प्रेजेंट इन द गैसियस फॉर्म एंड अनदर डिस्टिंक्टिव रोल, दिस इज वेरी मच स्पेशलाइज्ड फॉर द फ्रूट ripening. Now this ethylene, which is the very simplest gaseous hormone. Now this gaseous hormone, which is recognized in 1930 by the Chinese scientist, and this ethylene hormone, no doubt it is in the gaseous form. This plays the very important role in the fruit ripening. And this hormone also synthesized in response to the stress condition. And during the fruit ripening, that also synthesized in very much quantity. Now, this ethylene hormone that plays the important role in the various physiological activities. One of the role that is the fruit ripening, leaf and flower senescence, ethylene break the dormancy and flowering. So one of the role which is played by this hormone that is the fruit ripening, this is very important role which is played by the ethylene. हमें पता है कि हम जो फ्रूट्स खाते हैं वो फ्रूट्स हमको मीठे भी लगते हैं और वो स्मूथ रहते हैं।